بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. آج علم میراث کورس کا ہمارا پہلا دن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کورس کو آسان بنائے اور خیر عافیت کے ساتھ ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ یہ انشاءاللہ 15 دنوں پہ کورس ہے، 15 دنوں پہ مشتمل کورس ہے۔ کورس کے آغاز سے پہلے مختصراً اپنا تعارف کرا دوں تاکہ افادہ اور استفادہ کرنا ایک دوسرے کے لیے آسان ہو۔ میرا نام محمد ہے۔ میں نے بنیادی دینی اور عصری تعلیم لاہور میں جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاک اقبال ٹاؤن لاہور سے حاصل کی ہے۔ 8 سالہ درس نظامی بھی وہاں سے کیا۔ اسی طرح ایم اے تک عصری تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی۔ تجوید، قراءت سبع اور قراءت عشرہ کی تعلیم وہاں سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد 3 سال کا تخصص جامعہ دارالعلوم کراچی وہاں سے کیا۔ استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی زیر سرپرستی میں، اور پھر اس کے بعد جامعہ اشرفیہ لاہور سے وابستگی رہی کافی عرصے تک۔ وہاں دارالافتاء میں خدمت کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا، اور اسی دوران جامعہ اشرفیہ کی ایک شاخ جامع مسجد میاں محمد فاضل، اس کی ذمہ داری بھی بندہ کو دی گئی تھی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے صحیح طریقے سے وہ ذمہ داریاں مکمل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ علمی میراث کورس جو ہے، علمی میراث، یہ میں نے کن اساتذہ سے حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو جامعہ دارالعلوم اسلامیہ میں جب ہم چھٹے سال میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد محترم مفتی اکرم صاحب، ان سے سراجی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد کئی مرتبہ اپنے والد محترم سے یہ علمی میراث کورس پڑھنے کا موقع ملا۔ اور پھر جب ہم دارالعلوم کراچی میں گئے، وہاں پہ استاد محترم مفتی عبداللہ برمی صاحب سے ہم نے یہ کتاب دوبارہ پڑھی، اور اسی طرح مختلف مواقع پر مفتی عبد المنان صاحب اور مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے استفادے کا موقع ملا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ دراصل میرے اساتذہ کا فیض ہے، میرے اساتذہ کے علوم ہے۔ میں تو صرف ایک واسطہ ہوں آپ کے اور ان کے درمیان، حد اوسط کی طرح میں درمیان سے گر جاؤں گا۔ اصل میں ان کی جو امانت ہے وہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ تو ہمارے جو اساتذہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے خصوصی طور پہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح استاد محترم مولانا انس چترالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رمضان کمرانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اصغر علی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح دیگر بہت سے اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔
تو یہ علم میراث کورس جو ابھی میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو منہج ہے، ہر ایک استاد کا اپنا اپنا منہج ہوتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب نے جس طریقے سے مجھے یہ علم میراث سکھایا، وہی طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کورس کا جو مقصد ہے، ایک تو علم میراث جو ہے یہ ہمیں صحیح طریقے سے حاصل ہو، علم میراث ہمیں صحیح طریقے سے رسوخ اس میں حاصل ہو جائے۔ اور جس ترتیب سے یہ کورس آپ کو کرایا جائے گا، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنا روزانہ کا کام کریں گے انشاءاللہ، تو آپ 5 منٹ کے اندر مکمل علمی میراث جو ہے وہ دہرا سکیں گے۔ 5 منٹ کے اندر علمی میراث آپ دہرا سکیں گے۔ اشتہار میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ کورس کرنے کے بعد آپ 5 منٹ میں علمی میراث کو دہرا سکیں گے۔ لیکن یہ ان افراد کے لیے ہے جو روزانہ کا سبق روز توجہ سے سنیں گے اور یاد کریں گے۔ اور یہ علمی میراث کورس ایسا ہے کہ جب تک ہم اس کو زبانی یاد نہیں کریں گے تو مسائل حل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوں گے۔ اس کا سیکھنا بہت آسان ہے، بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت آسان معلوم ہوگا، لیکن اگر آپ یاد نہیں کریں گے پھر بعد میں آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ علم میراث کو مشکل فن سمجھا جاتا ہے، کہ بہت مشکل ہے۔ وجہ یہی ہے کہ توجہ ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم توجہ کریں گے تو یہ بہت آسان ہے، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ پھر جب آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اس کا سیکھنا، یاد رکھنا آسان ہوگا، پھر آپ کو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ بہت اہم علم ہے، علم میراث جو ہے یہ بہت اہم علم ہے۔ جب ہم اس کو سیکھیں گے تو ہم آدھے مفتی بن جاتے ہیں۔ دارالفتہ میں الحمدللہ کئی سال، جامعہ اشرفیہ کی دارالفتہ میں اور دارالعلوم کراچی میں 3 سال تک موقع ملا وہاں پہ۔ تو اکثر جو مسائل ہے وہ یا تو میراث سے متعلق ہوتے ہیں یا طلاق سے متعلق، وراثت سے متعلق اور طلاق سے متعلق۔ تو اگر آپ علم میراث سیکھیں گے گویا کہ آپ آدھے مفتی بن جائیں گے۔ ویسے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ ہمارا مقصود جو ہے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، فرائض کو سیکھ لو۔ فرائض سے مراد علم میراث ہے۔ اور یہ کہ بات دیگر ہے، دوسروں کو سکھاؤ۔ وہ وقت قریب ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی اور رسالت و نبوت کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور علم کے معدوم ہونے کا زمانہ آئے گا کہ دو آدمی ایک ضروری مسئلے میں جھگڑتے ہوں گے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، فرائض کو سیکھو، کیونکہ وہ نصف علم ہے، اور سب سے پہلے جو علم میری امت میں سے اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ بہت زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس علم کو سیکھ لیں۔ مختصراً ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علم میراث جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ علم میراث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو فقہ کی کچھ قواعد ہے، اور اسی طرح ریاضی، حساب جسے کہتے ہیں، میتھ جسے کہتے ہیں، اس کے کچھ قواعد ہے۔ فقہ اور حساب کے کچھ قواعد کو جاننا، اس کے ذریعے سے ترکہ میں سے ہر ایک وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارا علمی میراث کورس ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس طریقے سے جب آپ اس علم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مولانا انس چترالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں صرف اور نحو پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس دوران وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی علم کو منظم اور مرتب انداز سے سیکھا جائے تو پھر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ مثال دیا کرتے تھے کہ
اگر آپ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہو، آپ نے مرتب انداز سے اسے لائبریری میں یا جہاں پہ کمرہ ہے وہاں پہ آپ نے نہ رکھے ہو، ویسی غیر مرتب انداز سے آپ نے ایک ڈھیر بنایا ہو کتابوں کا، آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہوگی، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ یہ کتاب میرے پاس ہے، لیکن اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم لگے گا، یا تو وہ کتاب ملے گی نہیں، یا وہ کتاب گھنٹوں بعد آپ کو مل جائے گی، بہت مشکل پیش آتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرتب انداز سے ان کتابوں کو رکھ لیں، تفاسیر کو ایک جگہ رکھ لیں، احادیث کو دوسری جگہ، فقہ کو تیسری جگہ۔ تو جب آپ کو کسی کتاب کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ فوراً آئیں گے، تفاسیر میں سے اگر کوئی چیز چاہیے وہاں سے آپ اٹھا لیں گے، جلدی، آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ کو وہ کتاب مل جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح جو بھی علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو علم کے جو قواعد ہے، ضوابط ہے، ان کو ہمیں مرتب انداز سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے ذہن کے دریچوں میں اسے کھول دیکھنا اور تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ علمی میراث کورس کا جو خاکہ ہے، اسی کے مطابق ہم چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو علمی میراث کورس کا جو خاکہ ہے، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے خلاصۃ المیراث، پہلا حصہ کیا ہے؟ خلاصۃ المیراث، یعنی علمی میراث کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس معرفت الورثاء، معرفت الورثاء، ورثہ کی پہچان، ٹھیک؟ اور تیسری چیز جو ہے توصیل الحقوق الی مستحقیہم، توصیل الحقوق الی مستحقیہم، کہ ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ۔ توصیل کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، الحقوق، حقوق حصے کے معنی میں، مستحقیہم ورثہ کے معنی میں، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ۔ اور نمبر 4 متفرقات، مختلف امور آ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ہمارا خاکہ ہے، یہ ہمارا نقشہ ہے۔ علم میراث ایک شہر کا نام ہے، اور اس میں یہ 4 مقامات ہے، 4 مختلف مواضع ہے۔ ان 4 مقامات کو ہم نے جا کے دیکھنا ہے اور معلومات حاصل کرنی ہے کہ ان 4 مقامات میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے ہی ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہم نے یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ علمی میراث کورس کا خاکہ کیا ہے؟ 4 چیزوں پہ مبنی ہے۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث، نمبر 2 معرفت الورثاء، نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، نمبر 4 متفرقات، نمبر 4 متفرقات۔ تو علمی میراث کورس کا یہ ہمارا خاکہ ہے: خلاصۃ المیراث، معرفت الورثاء، توصیل الحقوق الی مستحقیہم، متفرقات۔ اب ترتیب کے مطابق ان 4 چیزوں کو ہم پڑھیں گے، ترتیب کے مطابق ان 4 چیزوں کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلی چیز جو ہے خلاصۃ المیراث۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی ہم نے علم پڑھنا ہے، جو بھی کوئی فن ہم نے پڑھنا ہے، تو ہمارے پاس پہلے اس کا نقشہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا اس میں سے پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ ہم کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، اب 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں نقشہ معلوم نہیں ہے، ایک جگہ ہم نے جانا ہے، اب وہاں اس جگہ تو ہم پہنچ جائیں گے اپنی منزل مقصود تک، لیکن مشکل پیش آئے گی، کبھی ایک سے پوچھا، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، کبھی غلط راستے پہ چلے گئے، کبھی صحیح راستے پہ چلے گئے، مطلب اگر 1 منٹ میں ہم نے پہنچنا تھا وہ 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نقشہ ہوتا ہے، آپ نقشے کے مطابق فوراً اس جگہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ گوگل میپ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، آپ فوراً اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے علمی میراث شہر کا جو ہے نقشہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ ترتیب کے مطابق پہلے خلاصۃ المیراث اس کا چکر لگائیں گے، یہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ سوالات انشاءاللہ آپ کے بعد میں آخر میں لیے جائیں گے، تو اس میں آپ عربی میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، آپ اردو میں یاد کر لیں یا آپ عربی میں یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ عربی میں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
अलबत्ता अरबी में याद करेंगे, मदारिस के तलबा और तालिबात के लिए अरबी में याद करना आसान होता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो खुलासतुल मीरास। पहली चीज क्या है हमारे सामने? खुलासतुल मीरास। अब खुलासतुल मीरास में हमने तीन चीजें पढ़नी है। खुलासतुल मीरास में कितनी चीजें पढ़नी है? तीन चीजें पढ़नी है। नंबर एक, अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरीक़तिल मय्यित। खुलासतुल मीरास में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरीक़तिल मय्यित, मय्यत के तरका से मुतालिक हुकूक। नंबर एक, मय्यत के तरका से मुतालिक हुकूक। नंबर दो, तरतीब व तकसीम तरीका, तरका जो है उसको तकसीम करने की तरतीब, किस तरीके से आपने, किस तरतीब के मुताबिक तरका को तकसीम करना है, तरका तकसीम करने की तरतीब। और नंबर तीन, मवानिउल इर्थ। मवानिउल इर्थ से मुराद वो असबाब है जिसकी वजह से वारिस विरासत से महरूम होता है, विरासत से महरूम करने वाले असबाब। तो खुलासतुल मीरास में हमने कितनी चीज़ों को पढ़ना है? मैयत की तरका से मुतालिक हुकूक, तरका तकसीम करने की तरतीब, और विरासत से महरूम करने वाले असबाब, विरासत से महरूम करने वाले असबाब। तो शुरू में हमने इल्मी मिरास कोर्स का खाका पढ़ा, चार चीज़ें पढ़ी। कितनी चीज़ें पढ़ ली? चार चीज़ें। खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वरसा, तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिकीहिम, और मुतफर्रिकात। फिर हमने खुलासतुल मीरास को लिया, तो खुलासतुल मीरास में फिर तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरीक़तिल मय्यित, नंबर दो तरतीब व तकसीम तरीका, नंबर तीन मवानिउल इर्थ। ये हर एक की तफसील आ जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब ये हर एक को तफसील से ज़रा पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ जो है, मैयत की तरका से मुतालिक चार हुकूक। मैयत की तरका से मुतालिक कितने हुकूक होते हैं? चार हुकूक होते हैं। मैयत की तरका से मुतालिक कितने हुकूक है? चार है। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरीक़तिल मय्यिति अर्बअतुन। नंबर एक, तजहीज़ व तकफीन। पहली चीज क्या है? तजहीज़ व तकफीन। नंबर दो, बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर दो, बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर तीन, बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत का निफाज। बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करना, ठीक है। नंबर चार, बकिया माल को वरसा में तकसीम करना। नंबर चार, बकिया माल को क्या करना है? वरासा में तकसीम करना है। तो मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक है? चार। मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक है? चार। नंबर एक, तजहीज़ व तकफीन। नंबर दो, कर्ज की अदायगी। नंबर तीन, एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करना। नंबर चार, जो माल बाकी बच जाएगा उसको वरासा में तकसीम कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे? वरासा में तकसीम कर लेंगे। बात समझ आ गई? मैयत की तरका से मुतालिक कितने हुकूक है? चार है। यानी किसी शख्स का जब इंतकाल होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है? मैयत का जो हक है, तजहीज़ और तकफीन, मैयत की तजहीज़ और तकफीन करनी है। ये मैयत की तरका में से आपने करना है, मैयत की तरके में से रकम लेनी है और ये तजहीज़ और तकफीन आपने कर लेनी है। लेकिन इसमें ये बात याद रखना है कि इसराफ और बुखल से बचते हुए एतदाल से काम लेना है। इसराफ से भी बचना है और बुखल से भी बचना है। एतदाल से काम लेते हुए आपने तजहीज़ और तकफीन करनी है। ये मैयत का हक है। ये क्या है? तजहीज़ और तकफीन, ये मैयत का हक है। अगर किसी ने अपनी तरफ से तजहीज़ और तकफीन का खर्चा बर्दाश्त कर लिया एहसान के तौर पे, मसलन किसी बेटे ने किया, तो फिर अब इस खर्चे को तरके में से नहीं निकाला जाएगा। दूसरे नंबर पे माल से मुतालिक जो हक होता है वो कर्ज की अदायगी है। अगर मैयत के ऊपर कोई कर्ज है तो उसको अदा किया जाएगा। मैयत के ऊपर कोई कर्ज है
तो उसको अदा किया जाएगा। अब कर्जों की तफसील है वो फिर इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे कि किस किस्म का कर्जा यहाँ पे अदा किया जाएगा, कौन सा कर्जा अदा नहीं किया जाएगा। ठीक है। बाज़ औक़ात कर्जा ऐसा होता है कि वो मुकम्मल तरह का जो है वो खर्च हो जाता है, कुछ माल बाकी नहीं बचता, और इसके मुख्तलिफ सूरतें ये इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो बकिया माल से आपने क्या करनी है? कर्ज की अदायगी करनी है। बीवी का महर अगर अदा ना किया हो, वो भी कर्जे में शुमार होता है, उसकी भी अदायगी पहले की जाएगी, विरासत का हिस्सा बाद में दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे जो माल बाकी बच जाएगा इन दो चीजों से, तो एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करना है। एक तिहाई की हद तक, पहली शर्त क्या है? एक तिहाई की हद तक। और दूसरी शर्त क्या है कि जायज वसीयत हो। नाजायज कामों की अगर वसीयत की गई है तो उसको पूरा नहीं किया जाएगा। और तीसरी शर्त यहाँ पे ये कि वारिस के हक में वसीयत का एतबार नहीं होता, गैर वारिस के हक में वसीयत होगी। वसीयत किसके हक में होगी? गैर वारिस के हक में। और फिर अगर कोई माल बाकी बच जाएगा फिर उसको वरासा में तकसीम करना है। वरासा में माल की तकसीम करने की बारी चौथे नंबर पे आती है। अब एक मिसाल हम समझ लेते हैं। मसलन एक शख्स का इंतकाल होता है, उसका तरका जो है 100 रुपए है। उसका तरका कितना है? 100 रुपए है। हम फर्ज कर लेते हैं कि तजहीज और तकफीन में 20 रुपए खर्च हो गए। 20 रुपए तजहीज और तकफीन में खर्च हो गए। 20 रुपए उसके ऊपर कर्जा था। 20 रुपए उसके ऊपर क्या था? कर्जा था। तो वो 20 रुपए कर्जे में अदा कर लिए, और 60 रुपए बाकी बच गए। अब एक तिहाई की हद तक उसने वसीयत की थी, वो भी हम अदा कर लेंगे। तो वो 20 रुपए वसीयत में हमने दे दिए, बाकी बच गए 40 रुपए। अब ये 40 रुपए जो है ये वरासा में तकसीम किए जाएंगे। ये 40 रुपए जो है ये क्या किए जाएंगे? वरासा में तकसीम किए जाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई सबको? खुलासतुल मीरास में पहली चीज होती वो मैयत के तरका से मुतालिक 4 हुकूक। मैयत की तरका से मुतालिक 4 हुकूक वो आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी आप। अब खुलासतुल मीरास में दूसरी चीज जो है, खुलासतुल मीरास में दूसरी चीज जो है तरका तकसीम करने की तरतीब। तरका तकसीम करने की तरतीब क्या होगी? यानी आपने वो रसा में तरका को तकसीम करना है, वो 40 रुपए आपने तकसीम करने हैं, तो उसकी क्या तरतीब है? अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें। जो मैंने चीजें यहाँ पे ली किताबों में, ये सारी बातें यानी किताबों में ज्यादा चीजें लिखी हुई है, और मैंने सिर्फ वो चीजें ली है जो अमली तौर पे हमें हर मसले को हल करने में पेश आती है। बात बातें वो है जो किताबों में मौजूद है, लेकिन अमली तौर पे उनका वजूद फिल वक्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह मिसाल से समझा भी लेता हूँ, पहले आप इसको समझ लें। तरका तकसीम करने की तरतीब। तरका तकसीम करने की तरतीब, सबसे पहले तरका किसको दिया जाएगा? जवील फुरूज को। जवील फुरूज वरासा की एक किस्म है, इसकी वजाहत आगे आ जाएगी। जो तलबा नए हैं बिल्कुल, वो ये नाम लिख लें, इसकी वजाहत आगे आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तरका तकसीम किन में किया जाएगा? जवील फुरूज को। जवील फुरूज को दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आसबा को दिया जाता है। ये भी वरासा की एक किस्म है। ये भी क्या है? वरासा की एक किस्म है, वजाहत आगे आ जाएगी। यानी जवील फुरूज अगर ना हो, या जवील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए, तो फिर वो आसबा को दिया जाता है। जो माल बाकी बचता है जवील फुरूज से, वो भी आसबा को दिया जाता है। अगर जवील फुरूज ना हो, तब भी सारा माल जो है आसबा को दिया जाता है। तीसरे नंबर पे जवील फुरूज तो मौजूद है लेकिन आसबा नहीं है, और जवील फुरूज से कुछ माल बाकी बच गया, अब जवील फुरूज नसबी पर रद्द होगा। जवील फुरूज नसबी पर रद्द होगा। रद्द का माना दोबारा उनको दिया जाएगा। पहले एक मरतबा नंबर एक में दे दिया था, अब दोबारा जो बाकी बच जाएगा वो उनको दे दिया जाएगा, तो इसको रद्द कहते हैं। अब जवील फुरूज की दो किस्में हम आगे पढ़ेंगे। एक जवील फुरूज नसबी है, एक सबबी है। मियाँ बीवी जो है वो जवील फुरूज सबबी है।
मियाँ बीवी पे रद्द नहीं होगा, उनको दोबारा नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता ज़वील फुरूज नसबी जो है, बाकी 10 जो है, तफसील हम आगे पढ़ लेंगे। यानी मियाँ बीवी के अलावा बाकी जो ज़वील फुरूज है वो 10 है, उन पे रद्द किया जाएगा। नंबर 4, नंबर 4, ज़वील फुरूज भी नहीं है, आसबा भी नहीं है। ज़वील फुरूज भी नहीं है, आसबा भी नहीं है। अब तरका किस में तकसीम किया जाएगा? ज़वील अरहाम में। अब किस में तकसीम किया जाएगा? ज़वील अरहाम में। ज़वील अरहाम ये भी वरसा की एक किस्म है। तो तरका तकसीम करने की क्या तरतीब होगी? सबसे पहले तरका को हम तकसीम करेंगे ज़वील फुरूज में। ज़वील फुरूज से अगर कोई बाकी बच जाए या ज़वील फुरूज ना हो तो फिर आसबा को हम दे देंगे। ठीक है। अगर आसबा भी ना हो और ज़वील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए तो फिर हम ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द करेंगे। अगर ज़वील फुरूज और आसबा ना हो तब फिर हम ज़वील अरहाम को दे देंगे। अमली तौर पे जब हम मसला हल करते हैं तो ये सूरत हाल हमारे सामने आती है। बाकी आप सिराजी किताब आप उठाएंगे, बाकी किताबें आप उठा लेंगे, तो यहाँ पे 10 मुख्तलिफ मद्दात लिखे हुए हैं। मसलन यानी सबसे पहले ज़वील फुरूज को दिया जाता है, फिर आसबात नसबी को, फिर आसबात सबबी। ये आसबा सबबी एक किस्म है, मौल इताका जिसे कहा जाता है। ठीक है। अब आजकल नहीं है मौल इताका जो है, गुलामी वगैरह का दौर चूंकि खत्म हो चुका है तो ये इसका वजूद नहीं है। ठीक है। फिर ये ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द होता है, और फिर इसी तरह ज़वील अरहाम को दिया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद किताबों में लिखा हुआ है मौल अल मुवालात, इसका भी आजकल वजूद नहीं है। मुकर लहू बिन नसब अल गैर, मूसा लहू बिमा ज़ादा अला सुलुस बैतुल माल, सब आखिर में माल को दिया जाता है। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अमली तौर पे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पेश आती है, इसलिए हमने उसी को बयान किया। बरकत को हम इस तरतीब के मुताबिक तस्लीम करेंगे। ठीक है। इसमें भी ये ज़वील अरहाम का बहुत कम यानी मसला पेश आता है। या तो ज़वील फुरूज सारा माल ले लेते हैं, ज़वील फुरूज से अगर कुछ बचता है तो आसबा ही पर सारा माल खत्म हो जाता है। ज़वील अरहाम को बहुत शाद नादिर कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है। जब ज़वील फुरूज और आसबा ना हो, और ऐसा मसला शाद नादिर ही पेश आता है। तो खुलासतुल मीरास में दो चीजें हमने पढ़ ली, तरका से मुतालिक 4 हुकूक, और इसी तरह तरका तकसीम करने की तरतीब। तरका तकसीम करने की तरतीब। ठीक है। ये आवाज के बारे में कंफर्म कर दे, आवाज सही है कि नहीं? अब तीसरी चीज जो है मवानी इर्फ। मवानी मानिअ की जमा है रोकने वाली। मवानी किसकी जमा है? मानिउन की। इसका माना होता है रोकने वाला। यानी वो असबाब, वो सिफात कि अगर किसी वारिस में पाए जाए तो वो विरासत से महरूम होता है। वो क्या होता है? विरासत से महरूम होता है। यानी ये वो असबाब है जो वारिस को मोरिस की मीरास से महरूम कर देते हैं। ठीक है। नंबर 1, गुलामी, यानी गुलाम होना, यानी वारिस का गुलाम होना। वारिस का क्या होना? गुलाम होना। अगर वारिस गुलाम होगा तो उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। नंबर 2, कत्ल, यानी वारिस का कातिल होना। वारिस का क्या होना? कातिल होना। कातिल से क्या मुराद? वारिस अपनी मोरिस को कत्ल कर दे। वारिस अपनी मोरिस को कत्ल कर दे, खुदा न खास्ता अपने बाप को कत्ल कर दे, तो अब इस बेटे को अपने बाप की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता अगर किसी तीसरे बंदे को इसने कत्ल किया हो तब इसको अपने बाप की विरासत में से हिस्सा मिल जाएगा। कत्ल से मुराद यानी अपनी मोरिस को इसने कत्ल किया हो तब हिस्सा नहीं मिलता। ठीक है। नंबर 3, इख्तिलाफ दीन। नंबर 3 क्या है? इख्तिलाफ दीन, यानी वारिस और मोरिस के दीन का इख्तिलाफ हो। वारिस और मोरिस के दीन में क्या हो? इख्तिलाफ हो, मुख्तलिफ हो। जैसे बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, या खुदा न खास्ता बेटा मुसलमान है, बाप काफिर है, तो ये एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। ये एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। नंबर 4, इख्तिलाफ दारैन।
इख्तिलाफ दारैन यानी दार मुख्तलिफ हो। क्या मतलब? वारिस और मूरिस के वतन का जुदा जुदा होना, मुल्क का जुदा जुदा होना। लेकिन ये सिर्फ काफिरों के हक में है। यानी जैसे काफिर बाप पाकिस्तान में रहता है और उसका काफिर बेटा जो है वो अमेरिका में रहता है, तो ये एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे। लेकिन अगर मुसलमान ऐसे हैं कि बेटा पाकिस्तान में है, बाप जो है अमेरिका में है, तो वो एक दूसरे के वारिस होंगे। तो इख्तिलाफ दार जो है ये काफिरों के हक में है। फिर यहाँ पे सवाल अक्सर जहन में ये आता है कि हम तो मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए कवायद पढ़ रहे हैं, ये काफिर के लिए क्यों कायदा बयान किया जा रहा है? इसका जवाब ये है कि मुसलमानों की हुकूमत हो और मुसलमानों की अदालत में काफिरों का कज़िया आ जाए, मसला आ जाए, तो आपने किस तरीके से हल करना है? एक जो है बेटा, एक वारिस एक मुल्क में है, दूसरा वारिस दूसरे मुल्क में है, तो फिर इस तरीके के मुताबिक आप हल करेंगे, क्योंकि मुसलमानों की मातहती में काफिर वगैरह भी रहते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो दौर हमें दोबारा नसीब फरमा दे। तो ये मवानी इर्स भी समझ में आ गया आप सबको? जी, मवानी इर्स मुझे बता दें, समझ में आ गया? तो आज के लिए हमारा सबक इतना ही है, ठीक है। मैं एक मरतबा दोबारा खुलासा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, जो आप लोगों ने याद करना है। इल्मी मीरास कोर्स का खाका चार चीज़ें हैं: खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वरासा, तफसीलुल हुकूक इला मुस्तहिक़ीही, मुतफर्रिक़ात। उर्दू में याद करें, आप अरबी में याद कर ले, आपको इख्तियार है। अब सबसे पहली चीज़ हमने खुलासतुल मीरास पढ़ ली। खुलासतुल मीरास में तीन चीज़ें हैं: अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिक़तिल मय्यित, नंबर दो तरतीब व तक़सीम तरीका, नंबर तीन मवानिउल इर्स। फिर हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिक़तिल मय्यित जो है वो चार है: तजहीज़ व तकफ़ीन, बकिया माल से कर्ज की अदायगी, बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत का रिफास, और नंबर चार बकिया माल को वरासा में तकसीम करना। और दूसरी चीज तरका तकसीम करने की तरतीब: सबसे पहले जवील फरोज को दिया जाएगा, जवील फरोज से कुछ माल बाकी बच जाए या जवील फरोज ना हो फिर आसबा को दिया जाएगा। आसबा अगर बिल्कुल ना हो, जवील फरोज से माल बाकी बच जाए, तो जवील फरोज नसबी पे हम रद्द करेंगे। और अगर जवील फरोज भी नहीं है, आसबा भी नहीं है, तब हम जवील अरहाम को दे देंगे। फिर मवानी इर्स जो है वो चार है: नंबर एक गुलामी, नंबर दो कत्ल, नंबर तीन इख्तिलाफ दीन, और नंबर चार इख्तिलाफ दारैन। नंबर चार क्या है? इख्तिलाफ दारैन। ये इसको अरबी में किस तरीके से बयान किया गया है, ये आपके सामने मैं बयान कर लेता हूँ। ये सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब अरबी में इसी को बयान किया जाता है, ताकि जो तलबा तालिबात अरबी में याद करना चाहें उनके लिए आसानी होगी। अलमबहसुल अव्वल फ़ी खुलासतिल मीरास, पहली बहस जो है वो मीरास के खुलासे के बारे में है। वफ़ीही सलासतु मबाहिस, और इसमें तीन मबाहिस है। नंबर एक अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यित, मय्यित की तरकत से मुतालिक जो चार हुकूक है। क़ाल उलमाउना रहिमहुमुल्लाहु तआला, हमारे उलमा ने फरमाया है, यानी उलमा अहनाफ ने, ततअल्लक़ु बितरिकतिल मय्यित हुकूकुन अर्बअतुन मुरत्तबा, कि मय्यत के तरकत से मुतालिक चार हुकूक तरतीबवार मुरतब होते हैं। नंबर एक अल-अव्वल युब्दअ बितकफीनिही व तजहीज़िही मिन गैरि तबज़ीरिन वला तक़दीरिन, के सबसे पहले इब्तिदा की जाएगी मैयत की तकफीन और तजहीज़ है, तजहीज़ से मिन गैर तबज़ीरिन, बगैर किसी फजूल खर्ची के, वला तक़दीरिन, और बगैर किसी कंजूसी के, यानी एतदाल से काम लेना है। तुम तुक़ज़ा, फिर अदा किए जाएंगे, दुयूनहु, मैयत के कर्जों को, मिन जमी मा बकिया मिन माली, जो माल भी बाकी बच जाए उस में से अदा किए जाएंगे। और सुम्मा तुनफ़्फ़ज़ु, नंबर तीन, ये नाफिज किए जाएंगे, वसाया हो, उनकी वसीयतों को, मैयत की वसीयत को नाफिज किया जाएगा। मिन सुलुस मा बकिया बाद दैन, कर्जे में से जो बाकी बच जाए उसके तिहाई में। नंबर चार, सुम्मा युक़स्समुल बाकी, बाकी जो माल बच जाएगा उसको तकसीम किया जाएगा बैन वरसतिही, वरसा में, बिल किताब, किताबुल्लाह के उसूलों के मुताबिक, व सुन्नति, हदीस मुबारक की रोशनी में, व इजमा उम्मा, और इजमा उम्मत के उसूलों के मुताबिक। आगे
नंबर दो, तरतीब व तकसीम तरीका, तरका तकसीम करने की तरतीब। फयुबदा बिअस्हाबिल फराइज, सबसे पहले असहाबुल फराइज यानी जविल फरूज को दिया जाएगा। जविल फरूज की यहाँ पे तारीफ भी बयान की है। वहुमुल्लज़ीना लहुम सिहामुन मुक़द्दरतुन फी किताबिल्लाहि तआला, और जविल फरूज वो अफराद है जिनके लिए हिस्से कुरान मजीद में मुतय्यन है। जिनके लिए हिस्से कुरान मजीद में क्या है, मुतय्यन है, उनको जविल फरूज कहा जाता है। नंबर दो, सुम बिल असबात, दूसरे नंबर पे असबात को दिया जाएगा। असबा किसे कहते हैं? वल असबा, तो असबा वो है मैं यखुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फराइस, जविल फरूज से जो बाकी बच जाता है वो लेते हैं। वइंदल इनफिराद, और अगर असबा अकेले हो, जविल फरूज ना हो, युहरिज़ु जमी अल माल, तो सारा माल वो ले लेते हैं। नंबर तीन, सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूज़ नसबिय्यति बिक़द्रि हुकूक़िहिम, अगर आसबा ना हो और ज़विल फ़ुरूज़ से कुछ माल बाकी बच जाए, तो फिर वो ज़विल फ़ुरूज़ नसबिय्या पे रद्द किया जाएगा उनके हिस्सों के बक़दर। नंबर चार, सुम्मा ज़विल अरहाम, फिर ज़विल अरहाम को दिया जाएगा। नंबर तीन, मवानिउल इर्स अरबातुन, मवानी इर्स जो है चार है। अर्रिक़्क़ु वल क़त्लु व इख्तिलाफ़ु द्दीनैनि वद्दारैन, गुलामी, कत्ल और दीन का मुख्तलिफ होना, दार का मुख्तलिफ होना। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक था, ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। आप में से किसी का अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं।